بلکہ میرا بیٹا ابراہیم کہہ رہا تھا کہ ڈیف کیوں غریب ہوتے ہیں، جو سنتے بولتے وہ پیسے والے ہوتے ہیں اور جو ڈیف ہوتے وہ غریب ہوتے ہیں زیادہ تر. جو چیز ہم 2 دن میں سیکھتے ہیں یہ بچے 1 ہفتے میں سیکھتے ہیں، اور پھر اگر اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے، ریوائز نہ کروایا جائے تو یہ بھول جاتے ہیں. تو وہ بار بار چیزیں ان کو ریوائز کروائی جاتی ہیں، ریپیٹ کروائی جاتی ہیں. آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اقبال. آپ دیکھیں آن لائن گفتگو. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ماں سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کے اندر مثال قائم کر دی. گونگے اور بہرے بچوں کو اب قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا. اس معاشرے کے اندر بہت سے ایسے اسکول، انسٹیٹیوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کالجز دیکھیں ہیں جہاں پر بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو دینی تعلیم بھی ساتھ دی جاتی ہے. ان بچوں کو دینی تعلیم قرآن پاک کیسے حفظ کروایا جاتا ہے اور یہ خیال ان کو کیسے آیا، زندگی کے اندر کیا ایسا حادثہ پیش آیا یا ایسا واقعہ پیش آیا جس کے اندر انہوں نے یہ چیز سوچ لی کہ اب بچوں کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لازمی دینا ہے. تمام تر جو گفتگو ہے میرے ساتھ اہم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کے بےحد مشکور ہیں، اور جو آپ یہ عمل کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا اجر دے. یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کو آیا کیسے؟ ایکچولی میرے اپنے 2 بیٹے ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں، سن بول نہیں سکتے. تو میرا اپنا ایک ادارہ تھا، دینی ادارہ نا، تو وہاں پر نارمل بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ہم ان پہ بھی تھوڑا سا غیر روایتی انداز میں ان پہ کام کرتے تھے. سمر کیمپ وغیرہ کرتے تھے، کمپیوٹر کورسز وغیرہ کرواتے تھے. تو اس دوران پھر مجھے فیل ہوا کہ میرے اپنے بچے جو سن بول نہیں سکتے، ان سے جو قاریہ یا قاری صاحب ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے نا. تو پھر اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ بھی حق رکھتے ہیں. پھر میرا بڑا بیٹا بھی اس چیز کی ضرورت بہت فیل کرتا تھا کہ میرا بڑا بھائی پڑھتا ہے اور میں کیوں نہیں پڑھتا. تو اس خیال کے ساتھ پھر یہ پلان ہوا کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں دوسرے بچوں کو، جو نارمل بچوں کو چیزیں ملتی ہیں، سہولتیں ملتی ہیں، آگے بڑھنے کے وسائل ملتے ہیں، وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان بچوں کے لیے بھی وہی کچھ کر سکیں کہ جیسے دوسرے بچے، نارمل بچے اس دنیا کی دوڑ میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے ہم کوئی ذریعہ بنے. کیونکہ یہ بھی نارمل کی طرح ہی ہوتے ہیں، صرف ان کے سننے میں تھوڑی کمی ہوتی ہے. ویسے یہ کوئی مینٹلی طور پہ ریٹارڈڈ نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں ان کی بھی جواب دہی ہوگی. ہماری نمبر 1 تو جواب دہی ہم نارمل لوگوں کی ہوگی، اسپیشلی پیرنٹس کی ہوگی، ٹیچرز کی ہوگی. معاشرے کے جو لوگ، ایسے عناصر جو کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ اپنا اچھا کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان سب سے ہی کہ کیا یہ انسان نہیں تھے، ان کے لیے یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ان پر بھی ہم محنت کریں اور یہ بھی کامیاب ہو سکے نا. اس خیال کے تحت پھر ہم نے ابراہیم اکیڈمی فار دی ڈیف کا جو قیام تھا وہ پھر عمل میں لایا گیا. یہ بتائیں کہ ایک گھر کے اندر 1 سے 2 بچے اب نارمل ہو، یعنی کہ وہ اسپیشل پرسن ہو، تو ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ایک پوری اکیڈمی چلا رہی ہیں، ایک پورا مدرسہ چلا رہی ہیں، ایک پوری جو ہے وہ اس کے اندر انسٹیٹیوٹ ہے. ان سب کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ کن کن چیزوں کا آپ کو، کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی، یہ بچے چونکہ سن نہیں رہے ہوتے نا، یہ اگریسو ہوتے ہیں بہت زیادہ نا. یعنی ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. ان کے مزاج کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے، ٹیچر اگر ٹوک دیں، ڈانٹ دیں، دھمکیاں لگاتے ہیں آگے سے، یہ رویہ کوئی بھی ٹیچر برداشت نہیں کرتا. ٹیچر سم ٹائم ان سے بڑا فیڈ اپ ہوتے ہیں. پھر ٹیچرز کی پہلے تو ٹریننگ کی جاتی ہے نا کہ آپ نے پورے جذبے کے ساتھ، یہ ایک عبادت سمجھ کے، یہ آپ کی جاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے. اور سٹارٹ میں سچی بات ہے کہ میں بھی جب آتی تھی تو 4:30 پہ، سیکنڈ ٹائم چونکہ کلاس ہوتی ہے، کلاسز ان کی ہوتی ہیں، تو 4:30 پہ میں خود ان سے ان کی جو وہ محرومی کا احساس کرتے تھے، یہ بچے زیادہ کرتے تھے، تو میں خود بہت زیادہ ایسے میرا دل بھر جاتا تھا. سائڈ پہ جا کے میں رو کے آتی تھی. اور اب چونکہ یہ بچے بھی بہت امپروو کر چکے ہیں، یا میں بھی ان کے لیے یوز ٹو ہو چکی ہوں، تو اب میری طبیعت خراب ہو تو ان میں آ کے میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. مشکلات تو بہت ہوتی ہیں لیکن یہ کام تو دل سے کیے جاتے ہیں، جذبے سے کیے جاتے ہیں. جب جذبے ہوں، ان کے لیے تڑپ ہو، لگن ہو، تو پھر چیزیں سنبھالنا کرنا آسان ہو جاتی ہیں. مشکلات تو ہوتی ہیں لیکن ان کو ہینڈل
करना, हम वर्कशॉप्स करवाते हैं अपनी टीचर्स की, किस तरह से इनको हैंडल करना है, और माहिर नफ्सियात बुलवाए जाते हैं जो कि इनको इनका टेस्ट लेते हैं, हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से आप इन बच्चों के साथ ट्रीट करें तो ये बेहतर हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ इस तरह के केसेस आए हैं जो बच्चे थोड़ा सा स्लो लर्नर थे, कुछ मेंटली रिटार्टेड भी थे और डेफ भी थे, डेफ एंड म्यूट थे, सुन बोल नहीं सकते थे, दोनों कुव्वतें उनके पास नहीं थे, ऑटिज़म का शिकार थे, कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ नोट की कि जस्ट अटेंशन, तवज्जो, मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ उनको कितना चेंज करती है, और वो लोग चेंज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चों ने इतनी इम्प्रूवमेंट, कहाँ एक बच्चा इतना अग्रेसिव आता था, टांगे मारता था टीचर्स को, बच्चों को, वो जैसे एकेडमी में आता तूफ़ान बरपा हो जाता था, लेकिन अब वही बच्चा बढ़ बढ़ के सलाम कर रहा होता है, सबसे मोहब्बतें दे रहा होता है, आने वालों को हक कर रहा होता है। और ये मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जो ऑब्जर्वेशन वो यही कहती है कि अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक के साथ कि इनको जब तवज्जो मिलती है तो ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है कि इन बच्चों के ऊपर ख़र्चा भी होगा, आपने एक एकेडमी बनाई है, ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये तमाम अखराजात दिए जाते हैं या ख़ुद से आप मैनेज करते हैं? हमारा इदारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, सोशल वेलफेयर बैतुल माल के ज़रिए से, मरकज़ फ़लाह व बहबूद के नाम से, उसी का प्रोजेक्ट है इब्राहिम एकेडमी, इब्राहिम फाउंडेशन फॉर द डेफ। और इसमें हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स इनको करवाया जाता है जो मैट्रिक कर लेते हैं बच्चे, मैट्रिक के बाद इनके लिए स्किल्स होना कि ये अर्निंग हैंड बने, क्योंकि हमारे पास 500 लड़के और लड़कियां ऐसे रजिस्टर्ड हैं जो कि डेफ हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, वो लेबर वर्क करते हैं और हम नहीं समझ सकते कि वो कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। दोनों मियाँ बीवी भी डेफ होते हैं, आगे से बच्चे भी डेफ होते हैं, रेंट के घरों पे रह रहे होते हैं, काम कभी मिलता है नहीं मिलता, कपड़े फटे हुए उनके होते हैं। तो बल्कि मेरा बेटा इब्राहिम कह रहा था कि डेफ क्यों गरीब होते हैं, जो सुनते बोलते वो पैसे वाले होते हैं और जो डेफ होते हैं वो गरीब होते हैं ज़्यादातर। तो उसकी वजह ये कि स्किल्स नहीं होती ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई ऐसा कोई 1 रुपये का भी नहीं अभी हमें कोई सहूलत मिली। और दूसरा, मेरी कुछ दोस्तें हैं, मेरी बहनें हैं, वो मेरा साथ देती हैं, जिसमें हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं मिसिस शाहिदा सफदर हैं, वो इनर व्हील क्लब की मेंबर भी हैं और उनका बहुत सपोर्ट है। और इस तरह मिसिस सोनिया वसीम है, मिसिस ज़हीर हैं और मिसिस जुजीला इकबाल साहिबा हैं और मिसिस फलक नाज हैं और मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं। हमने एक पूरा 25 लोग हैं जो हम मिल के इस सारे प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा बहन है वो भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम लेकर चल रहे हैं। और मुश्किलात भी इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें हमने दस्तकारी स्कूल भी बनाया, मैट्रिक के बाद बच्चियाँ या अभी 7th 8th में ही होती हैं, तो इनको हमने ये स्किल्स देना शुरू की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी बच्चियाँ सीखती हैं, टाइम लगता है इनको ना, जैसे सुनने का एक सोर्स है हमारे पास, सुनने का एक ज़रिया है हमारे पास सीखने के लिए ना, जहन सुन के सीखता है। तो ये चूँकि सुनते नहीं है ना बच्चे, तो ये जो चीज़ हम 2 दिन में सीखते हैं ये बच्चे 1 हफ्ते में सीखते हैं, और फिर अगर उसको रिपीट ना किया जाए, रिवाइज़ ना करवाया जाए तो ये भूल जाते हैं। तो वो बार बार चीज़ें इनको रिवाइज़ करवाई जाती हैं, रिपीट करवाई जाती हैं, फिर जब इनको एक दफ़ा याद हो जाए तो फिर ये याद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं और कितनी टीचर्स आपने रखी हैं, जो टीचर्स रखी हैं उनकी कितनी तनख्वाहें हैं, ये तमाम तर खर्चात कितने तकरीबन बन जाते हैं और इनको जो है वो कैसे मैनेज किया जाता है? हाँ जी, हमारी टीचर्स जो हैं फीमेल टीचर 5 हैं और बाकी जो लोअर स्टाफ है उसमें जैसे आया जी हैं, जैसे स्वीपर हैं 2 वो हैं, और 5 ही हमारे मेल टीचर हैं। और मेल टीचर में हमारे स्पोर्ट्स भी इन बच्चों को करवाई जाती है, प्रोफेशनल कोच आते हैं, वो सुबह में गवर्नमेंट में किसी में अपनी सर्विसेज देते हैं, शाम में यहाँ। तो टीचर्स की सैलरी 10 से स्टार्ट है और 12 है, 15 है किसी की, और इनका तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट हमारा कम से कम ख़र्चा है, यानी रूटीन का मंथ का जो है। और उसमें ये हमारी फ़ीमेल ही डोनर हैं। और एक हमारा बेटा है उसामा, वो भी हमारे साथ होता है, बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाना है, उनके जो खुश्क राशन है उसके दिन में हम इनको हेल्दी फूड डेली देते हैं। जब ये बच्चे आगाज़ में आए थे तो हमने फ़ील किया ये बहुत वीक थे और इनको जल्दी फ्लू हो जाता था, फीवर होता था। फिर हमें लगा कि मेरे बच्चों ने भी बताया कि इनको भूख होती है। मेरे बच्चे इनके लिए बड़ा नरम दिल रखते, जो सुन बोल नहीं सकते ना, वो बड़े वाला तो डेफ कम्युनिटी का डेफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, डिवीजन
साहिवाल का और डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का, और वो तो इनके लिए बहुत ही काम करता है। 500 प्लस डेफ कम्युनिटी 13 इयर्स ऑनवर्ड 45 इयर्स तक बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको जॉब्स दिलवाना, जिनके लिए जैसे हैंड कार्ट अभी हमने 15 लोगों को अभी 10 हमने पहले दी थी, 5 फिर हमने बाद में दी, और रेडियाँ जो होती है ना उस पर सामान लगवा के देना। और ये इतने अच्छे बच्चे हैं, वरना किसी और को जॉब काम रोज़गार देना तो वो ये कहते हैं हमें लॉस हो गया ना, तो ये कभी भी लॉस की बात नहीं करते, इनका काम बढ़ता है। यानी हमने स्टार्ट में जब पहली रेडी एक लड़के को लेकर दी थी, उस पर स्टफ टॉयज रखवाए थे, तो अब 5000 में वो प्रोजेक्ट शुरू किया था बहुत साल पहले। तो वो बच्चा माशाल्लाह 30,000 मंथ का कमाता है, उनको मांगना नहीं पड़ता, यानी अल्लाह ताला ने उनको मोहताजी से निकाली है। वो एक अच्छी बेहतर, कुछ बेहतर, वो किसी का मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम हैंड कार्ड्स लेकर देंगे, जिसमें किसी को फ्रूट रख कर देंगे, किसी को वो सिट्टे, वो पठान फैमिली है, वो दोनों मियाँ बीवी भी डेफ हैं, उनके 9 बच्चे भी आगे से डेफ हैं। देखिए इस तरह के केसेस हैं कि पूरी फैमिली डेफ है और उनके पास अभी कोई रोज़गार नहीं, और रेंट के घरों पे ये लोग रह रहे होते हैं ना। तो पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि जो सुनते बोलते बच्चे हैं वो तो हमारे अर्निंग हैंड होंगे, हमारे लिए बड़ा वो है, और ये तो शायद मलंग है बच्चे, ये तो रोज़गार नहीं, वो भी उन पे इतना फोकस नहीं करते, उन पे इन्वेस्ट नहीं करते, उनको पढ़ाई की तरफ इतना। तो हम इनको स्कूल का भी पढ़ाते हैं, और कुरान पाक की तालीम हमें इसलिए शायद ज़रूरत महसूस हुई कि इनको तहारत का नहीं पता था ना जब हम स्टार्ट में ये बच्चे आए। तो फिर हमने ढूंढे कारी साहब ना, तो अल्लाह का शुक्र हमें डेफ ही मिल गए जो कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज जानते थे, और वो प्रॉपर स्कॉलर हैं। उन्होंने इनको कससुल अंबिया और इनको हिफ्स करवाते हैं साइन लैंग्वेज में, और स्पीच के ज़रिए जो बच्चे अब सुनना शुरू हो गए, हेयरिंग एड भी प्रोवाइड करते हैं हम, और उनकी स्पीच हुई, जिनकी स्पीच बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चे वैसे ज़ुबानी भी हम सुनवाएंगे अभी आपको, कि वो कैसे ज़ुबानी कुरान भी आपको पढ़कर सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्रॉपर हमारी तरह अदायगी तो नहीं होती, लेकिन समझ आती है कि वो क्या कह रहे हैं। और एक बच्ची की अम्मा जो है वो नात ख्वां है, और उस बच्ची का बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसका बहुत उसका हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा है। तो वो कहती कि मैं नात पढ़ूँ ना, तो हम उसको वैसे माइक दे देते तो वो ट्यून पूरी नात की करती, लेकिन उसको अभी वर्ड्स की अदायगी वो भी नहीं कर पाती। लेकिन उम्मीद हमें अपने रब से बड़ी है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये जितने भी बच्चे हैं ये मुकामी हैं या फिर बाहर से जो है वो दूसरे शहरों से हैं, आप इनको अगर रखती हैं तो इनको कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर दी जाती हैं, कितने दिनों के बाद इनको छुट्टी मिलती है, क्या क्या इनको खाने के अंदर दिया जाता है? जी ऐसा है कि हमारे पास अभी इनके लिए ना प्लेस नहीं है। मैं ऑलरेडी एक दीनी इदारा चला रही थी जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात के नाम से। उसी में सुबह में नॉर्मल बच्चियों की क्लासेस होती हैं, मतलब जिसमें हिफ्स है, तफसीर है, दरस निज़ामी है, वो सारे कोर्सेज 3 o'clock उनका ऑफ होते, साथ ही फिर 3 o'clock हमारा स्टाफ भी नया आ जाता है, बच्चे ये आ जाते हैं। फिर 3 ऑनवर्ड 7 o'clock तक इनकी क्लासेस होती हैं, और जिसमें हम इनको कुरान पाक की तालीम देते हैं बच्चों को, और इनको स्कूल की तालीम दी जाती है, इनकी स्पोर्ट्स करवाई जाती है, मार्शल आर्ट करवाई जाती है, और इसके साथ इनको खाना भी डेली हेल्दी फूड देते हैं। लेकिन हॉस्टल अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी प्लेस नहीं है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई फरिश्ता आए और वो हमें ये वसाइल भी अगर फ्राहम होते तो इंडोर एक्टिविटीज़ भी हम इन बच्चों की करवा सकेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि ये जो आपका मदरसा है, इंस्टीट्यूट है, ये कितनी इसकी जगह है, और ये जगह जो है आपने खुद खरीदी है या भी आपको डोनेशन मिली है, किसी बहन ने, किसी भाई ने जो है आपको डोनेट? जी ये जो जगह, ये 7.5 मरले की जगह है, और ये बेसिकली मदरसे को एक बाबा जी थे, बाबा जी अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने डोनेट की थी मदरसे को। तो ये बेसिकली मदरसे की जगह पे हम सेकंड टाइम क्लासेस लेते हैं, यानी मदरसे की जगह पर हम सेकंड टाइम ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड टाइम फ्री होता है ये बिल्डिंग ना। तो हम अब देख रहे हैं कि कोई हमें रेंट पर ये सहूलत दे दे, या वैसे कोई डोनेट कर दे, या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसा बिल्डिंग मिल जाए कि जिसमें हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें इंशाल्लाह। आप समेत जितनी भी बहनें हैं, भाई हैं, अगर हमें देख रहे हैं, अल्लाह आपको सबको जो है वो अल्लाह ताला इसका अजर दे। लास्ट पे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ आपके पास इस वक्त भी आप समझती हैं कि वो हमारे पास मौजूद नहीं है, और वो इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दूसरे बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, तो जिसकी जो है वो आपको ज़रूरत हो वो ऑन कैमरा आप बता दें।
हाँ जी, इसमें ना इनकी हेयरिंग असेसमेंट आफ्टर 6 मंथ करवाना होती है ना, हर 6 माह के बाद इनकी जैसे हमें आई साइट का चेक मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ नंबर होता है ना, ऐसे इनका हेयरिंग का भी नंबर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होता है। तो हर 6 माह के बाद अगर असेसमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हेयरिंग एड का जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। तो अगर हम बाज़ार से करवाते हैं तो वो उसकी 1500 उसकी फ़ी है, 1500 रुपये अगर हम उसकी फ़ी भरते हैं तो वो 50 बच्चों के लिए बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है, इतने फंड्स हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होते। तो अगर हेयरिंग असेसमेंट मशीन हमें कोई डोनेट कर दे, एक तो हमें वो बहुत सहूलत हो जाए, दूसरा हमें प्रिंटर हमारे पास मौजूद है, किसी ने सेकेंड हैंड हमें डोनेट किया था तो वो वर्किंग में नहीं है, तो वो बच्चे ये काम सीखते हैं और प्रिंट आउट निकालना करना। और तीसरी चीज़ जो हमें बहुत नीड है वो इनके हेयरिंग एड है। कुछ बच्चों को तो हेयरिंग एड लगे हुए थोड़े कॉस्टली होते हैं, 30,000 प्लस होता है हेयरिंग एड ना। तो वो इतने यहाँ पर चूँकि लेडीज़ ही हमारी सारी डोनर्स हैं तो लेडीज़ के पास इतने वसाइल नहीं होते हैं। तो कोई भी ये चूँकि नीडी बच्चे हैं तो ज़कात की मद में से भी और उशर और सदकात की मद में से भी इनकी हेल्प की जा सकती है। तो हमारे पास 99% बच्चे जो हैं वो नीडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लास्ट बहन ये बताएं कि अगर कोई दोस्त जो है वो आपके साथ हिस्सा मिलाना चाहे तो उनको यहाँ पर आना पड़ेगा, या आपने कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर रखा हुआ है या फिर जो है वो बैंक नंबर रखा हुआ है जिससे जो है वो आपके साथ पाकिस्तान के अंदर हो या बैरून मुल्क हो या आपके सिटी के अंदर या आउट ऑफ सिटी हो, वो आपके साथ ताउन कर सके? जी हाँ, हम लोग उनको वो जो कहेंगे इजी पैसा, जैज़ कैश अकाउंट वो भी हमारे नंबर पर मौजूद है। और इस तरह बैंक अकाउंट अभी हमारे इदारे का रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो बहुत सारे इदारे का भी नहीं हो रहा ना, जिनकी अभी रिसेंटली जिनकी रजिस्टर्ड हुए हैं ना इदारे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का तो अभी अंडर प्रोसेस है, काम हो रहा है। उम्मीद है, दुआ कीजिए कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए तो हमारा ज़्यादा इदारा जो हम प्रोजेक्ट इनके लिए करना चाह रहे हैं ना, जैसे इनके लिए हम वर्कशॉप चाह रहे हैं कि वर्कशॉप बन जाए तो हम बड़े लेवल पे काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम कोई ना कोई अकाउंट भी दे देते हैं, कोई करना चाहे तो कोई ना कोई सूरत मौजूद है कि वो ख़ुद आकर विज़िट कर लें तो हमारे लिए बहुत ही खुशी और ऑनर की बात होगी। या हमारा पेज है इब्राहिम अकेडमी फॉर द डेफ ना, तो वो पेज ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और या विज़िट करना चाहे या वैसे हमसे मालूमात ले लें, हमारा नंबर है, आप वो नंबर हमसे ले लीजिएगा 0322707737 और 0332622833। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। और विज़िट करें तो हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो आपसे भी मिलके बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद थी जिन्होंने खुद बीती जो है वो मुआशरे के अंदर, इन्होंने कहा कि किसी के साथ ना बीते। इन्होंने ये चीज़ समझा कि जिस तरह के जो है वो मेरे बच्चों को ये कमी महसूस हो रही है, और इसी तरह जो है वो दुनिया के अंदर जितने भी इसी तरह के गूंगे बहरे जो बच्चे हैं, स्पेशल पर्सन हैं, उनको भी ये कमी महसूस होती होगी। इन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने ये मदरसा बनाया, इसके अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी इन्होंने देना शुरू की, और आज माशाल्लाह यहाँ पर 50 से ज़्यादा जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह इस पूरे मदरसे के अंदर जो है वो इन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर इन बच्चों को तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं। ये ख़ुद अपने पॉकेट मनी से करते हैं, जिसको कहते हैं कि ख़ुद जो है वो अपने ताईं ये अपनी मदद जो है वो अपने ताईं करके ये तमाम जो निज़ाम है वो चला। नीचे आप इनका जो मोबाइल नंबर है और इनका जो एड्रेस है वो देख रहे हैं। आप इनके साथ ताउन करना चाहते हैं, यहाँ पर आके विज़िट करना चाहते हैं, और आप इनको जो है वो इनकी इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।